Hi everyone, and thank you so much for watching my channel The Witty Turtle. My name is Anvesha and right now I am a CMA finalist. So recently I got a lot of messages and emails from students asking about providing guidance on CMA final, all the 8 papers, right? So I thought, because I am also a student, so I am not in a position to provide you with guidance, but definitely being a friend, I can help you with some assistance, right? So I thought कि बहुत सारे मैसेजेस मेरे को बेसिकली ये 5 सब्जेक्ट्स के लिए आए, विच आर लॉ, CMA फाइनल लॉ, देन CMA फाइनल SCM, then IDT, which is indirect taxation, then CFR of course, and lastly paper 20 का elective कौन सा लेना है, right? So for the last paper, which is paper 20, I have already uploaded a video where I have compared SPMBV and entrepreneurship. Banking का मैंने नहीं लिया है because of course I don't know anything about that paper. So yes, if you have not yet watched that video and you are going to appear group 4, then the link is given in the description box below. Don't forget to check it out. So I thought maybe I should start a series of videos where I'll be providing you some assistance in all the 8 papers, right? एक का तो हो चुका है and the remaining 7 papers I'll be starting from today onwards, right? And also somehow we got an information that in the upcoming term, which is June 25 term, most of the students are going for group 3, and definitely group 3 is the syllabus of group 3 is very vast and very tricky as compared to group 4 syllabus, right? So today we are going to start with the assistance for paper number 13, which is corporate law and compliances. When it comes to pure theory papers like corporate law and compliances, it is a nightmare for those students who don't like to study theory much, just like me. So यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग एक लेवल नीचे जाके सोचेंगे कि हाउ कैन वी फेच गुड मार्क्स इन अ प्योर थियोरी पेपर, राइट? So basically there are 2 points that we need to remember. First is conceptual clarity, and second is how to reproduce your answer in the answer sheet using the exact legal language. So it's very important for you to understand what is written in the bare act and to be able to write those things with your own language but using the legal language in the exam hall, right? And law क्योंकि एक purely theory based paper है, so sometimes it gets very boring, to study for long hours, and that's why most of the students go for law classes. There are a very few students who dare to study law on their own, but most of the students go for law classes. So in this situation where you have to write the legal language and also you have to write the right correct thing, right? So it's very important for you to choose the right faculty who would make you understand the concepts and also make you aware what are the legal languages, how to write the exam, how to write the answers in the answer sheet in the exam, right? And while choosing the right classes, you need to take care of these things. The first is that your class has to be a CMA exclusive class, क्योंकि जो CA फाइनल का लॉ सिलेबस है एंड जो CMA फाइनल का लॉ सिलेबस है वो दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है, राइट? सो वाई टू गो इन दैट डायरेक्शन जो आपका डेस्टिनेशन ही नहीं है, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू चूज CMA एक्सक्लूसिव क्लासेस. सेकेंडली, जो आपका क्वेश्चन आंसर बैंक होता है एंड MCQ बैंक होता है, ये करेक्ट चूज करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स टू बी गिवन इन December 24, बट आई वेंट फॉर ओनली ग्रुप 4. सो मैंने लॉ के भी क्लासेस लिए हुए थे. सो आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू अ फैकल्टी विच इज CS मोहित बंसल सर. उनके जो क्लासेस हैं उनका नाम है मोहित बंसल क्लासेस. यू कैन फाइंड हिज वीडियोज़ ऑन माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो, एंड वो आप उनके अपने यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो उनके डेमो क्लासेस. सो मुझे ये फैकल्टी क्यों अच्छे लगे? solely based on his teaching style, right? I am going to give you 2 experiences of mine. First is the law classes which I had taken for CMA finals, and secondly CMAD classes, which is your cost and management audit. उसको उस पेपर को हम लोग प्यार से CMAD बोलते हैं, right? So what happened when I started preparing for group 4 ना, मैंने एक और फैकल्टी का क्लास ले लिया था फॉर कॉस्ट ऑडिट पेपर, विच वॉज द वर्स्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ. आई एम नॉट गोइंग टू नेम हिम, बट अगर आपको जानना हो तो आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे, मैं आपको बता दूंगी कौन से फैकल्टी थे. तो उनके क्लासेस लेने के बाद वो मेरा बिगेस्ट
मतलब मिस्टेक हो गया, क्योंकि उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, और जो पेपर का सब लोग बोल रहे थे कि इजी पेपर है, वो पेपर मुझे डिफिकल्ट लगने लगा था, राइट। सो इट वाज ओनली 1.5 months रिमेनिंग फॉर द एग्जाम्स, जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट में मेरा एकदम मेरी नैया डूबने वाली है, राइट। तो उस टाइम पे क्या हुआ, आई देयर वाज अ रिकमेंडेशन ऑन माय यूट्यूब पेज, जहाँ पे मोहित बंसल सर के CMAD के मैराथन्स आने लगे, राइट। इट वाज अ 19 hours लॉन्ग मैराथन। सो व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड वॉचिंग हिज मैराथन। वो एंटायर 19 hours का मैंने देखा। ऑफ कोर्स बिकॉज इट वाज अ मैराथन, ही हैड नॉट कवर्ड ऑल द चैप्टर्स, राइट। बट वॉट एवर चैप्टर्स ही हैड कवर्ड, ही हैड डन दैट 100%। ऐसा नहीं था कि ये चैप्टर को थोड़ा पढ़ा के छोड़ देते हैं, दूसरे चैप्टर पे जंप करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एंड आई रिमेंबर न्यूमेरिकल्स जो मुझसे नहीं बन रहे थे, आफ्टर वॉचिंग दैट मैराथन वो न्यूमेरिकल्स होने लगे, और उसमें से एक एग्जाम में भी आया था विच आई हैव डन राइटली। सो I don't know about my results, but I am very satisfied after giving the cost and management audit paper with the amount of preparation I was having, right? So ये था मेरा दूसरा एक्सपीरियंस विथ CS मोहित बंसल सर। सो दैट्स व्हाई आई थॉट मे बी आई शुड रिकमेंड यू विथ हिज क्लासेस और हिज स्टडी मटेरियल्स। तो जब मैंने उनके क्लासेस लिए थे, इट वाज आई थिंक 4 volumes, या ओनली 4 volumes। बट रिसेंटली अभी मेरी एक फ्रेंड ने क्लास लिया है, सो आई हैव गॉट द बुक्स फ्रॉम हर। राइट नाउ ही इज प्रोवाइडिंग यू विथ 6 volumes, राइट। जिसमें कि क्वेश्चन आंसर बैंक भी है एंड MCQ बैंक भी है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट हिज बुक्स इज दैट ही इज गिविंग एक्सप्लेनेशंस ऑल्सो इन द MCQ बैंक। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम लोग MCQ देखते हैं, फिर हमें लगता है कि आंसर A होगा, बट आंसर दिया रहता है C, और हमें पता नहीं चलता है कि वाई द आंसर इज नॉट A। सो फॉर दैट ही हैज़ गिवन एक्सप्लेनेशन इन एवरी MCQ, राइट, विच इज़ अ ग्रेट थिंग इन लाइक न्यूमेरिकल पेपर्स में भी होना चाहिए ये चीज़, और सर ने तो थियोरी में भी दे दिया है। सो राइट नाउ आई विल मेक यू वॉक थ्रू हिज बुक्स। सो हियर यू कैन सी देर आर अ टोटल ऑफ 6 volumes। ये जो पहला वॉल्यूम है, दिस इज योर वॉल्यूम 1, कॉर्पोरेट लॉ का है। ये आपका पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्ट बुक है, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब कुछ यहाँ पे बहुत, आई रियली लव द फॉन्ट साइज ऑफ द बुक। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब कुछ एकदम पॉइंट वाइज मैनर में दिया हुआ है, विच बिकम्स वेरी इजियर फॉर यू टू रिमेंबर, राइट। कि हाँ चलो आपको पता चल गया, आर्टिफिशियल पर्सन में मेरे को 4 ही पॉइंट्स याद करने हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट आफ्टर एवरी टॉपिक इससे क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है वो भी दिया गया है। सो इट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट फॉर द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड, सब कुछ कंसोलिडेट करके एक ही जगह पे दे दिया है, राइट। और यहाँ पे और एक चीज़ है कि यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं विच डजेंट लेट द स्टूडेंट गेट बोर्ड, राइट। तो ये है एक, ये पूरा ऐसे यहाँ पे आपका सैल्मन वर्सेस सैल्मन का केस स्टडी दिया हुआ है, वो भी पूरा एकदम अच्छे से डिस्क्राइब करके, फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट है। ये गया आपका पहला वॉल्यूम विच इज़ कॉर्पोरेट लॉ। नाउ सी दिस इज द वॉल्यूम 2, इकोनॉमिक लॉज। एंड इसमें भी वैसे ही सब कुछ एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में दिया गया है। यहाँ पे देखो बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल्स दिया हुआ है जिससे कि आप बोर नहीं होगे। एंड इट्स वेरी सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट बुक विच आई शोड यू इन द वॉल्यूम 1, है ना। तो ये गया आपका वॉल्यूम 2। देन वी हैव द MCQ फॉर कॉर्पोरेट लॉ। आपने कॉर्पोरेट लॉ का कॉन्सेप्ट बुक पढ़ लिया, उसके बाद आपको MCQ करने का मन हुआ, तो आप आ गए यहाँ पे वॉल्यूम 3 में, राइट। यहाँ पे एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देन यहाँ पे आंसर के बाद एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। दिस इज द बेस्ट थिंग ऑफ दिस बुक, राइट। आपको कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं है। सो ये आपका MCQ बुक हो गया कॉर्पोरेट लॉ के लिए। फिर इकोनॉमिक लॉ के लिए आपका ये वॉल्यूम 4 जो है, ये उसका MCQ हो गया। देन वी हैव द क्वेश्चन बैंक फॉर वॉल्यूम 5, जो कि आपका कंपनी लॉ का है। एंड सिमिलरली द क्वेश्चन बैंक फॉर इकोनॉमिक लॉ विच इज़ योर वॉल्यूम 6, है ना। So now there would be a few students who would write down in the comment section कि अरे ये तो promotion video है। So yes, it is a promotion video, but of course not a paid one. So मैं यही recommend करूँगी कि मुझे उनके classes बहुत अच्छे लगे थे, और last moment में उनके जो cost and management audit के marathons मैंने करे थे वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था। So I am definitely recommending you his name. And here I would like to mention one more thing, that most of the students are price sensitive, because even if we are in finals we are earning some amount of money, but उतने में इतना महंगा क्लास हम लोग नहीं ले सकते हैं, राइट। एंड इफ़ यू गो टू द मार्केट देर आर मेनी लॉ फैकल्टीज हुज क्लासेस आर प्राइस्ड एट 13,000, 14,000, 15,000। बट मोहित बंसल सर के क्लासेस का एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं है, बट इट इज़ क्वाइट रीजनेबल व्हेन इट कम्स टू अदर फैकल्टीज।
So in that case, just because I am recommending you his name, उनके क्लासेस मत लो, बट अगर आपको अच्छा लगे उनका टीचिंग स्टाइल, विच आई एम 100% श्योर कि अच्छा लगेगा, यू कैन वॉच हिज डेमो क्लासेस ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ऑन हिज यूट्यूब चैनल. अगर उसके बाद आपको अच्छा लगे एंड इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज हिज क्लासेस, देन यू कैन गो टू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट. यू कैन इधर कॉल हिम और वेबसाइट में आप डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकते हो. सो आप अगर वेबसाइट पे जा ही रहे हो तो उधर आप देख सकते हो कि सर के बहुत सारे रैंक होल्डर्स भी हैं जो उनके स्टूडेंट्स हैं, और जो इंडिया का यंगेस्ट CMA है वो भी सर के ही स्टूडेंट हैं. सो येस, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स आपको देखने मिलेंगे, बुक के स्टार्टिंग में भी है. आई डिडंट शो इट टू यू बिकॉज वो बहुत बोरिंग हो जाता. यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड चेक इट ऑन योर ओन. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग हिज क्लासेस, रिगार्डिंग हिज बुक्स, उनके कितने घंटे का है, क्या है, देन आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू यू ऑन माई इंस्टाग्राम, ऑन माई टेलीग्राम, ऑन माई यूट्यूब कमेंट सेक्शन. और जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है उन लोग के पास तो ऑब्वियसली है. सो यू कैन reach out to me anytime, right? I am there to help you out. I am there to provide you with right assistance. And lastly, for those students who want to complete the law paper on their own without taking any classes, so there are a few things you need to consider. The first thing is that you need to have a good question bank, you need to have good MCQ bank, and lastly, writing practice has to be there. And you need to know कि writing practice करना कैसे, how to reproduce the answers in the exam hall, right? It's very important for you. So यूट्यूब में तो बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है. यू कैन डेफिनेटली गो फॉर योर चैप्टर बाय चैप्टर, किसी भी फैकल्टी का आप लेकर कर सकते हो. बट व्हेन इट कम्स टू परचेजिंग क्वेश्चन बैंक एंड आपका MCQ बैंक, सो मैं डेफिनेटली अगेन मोहित सर का ही रेकमेंड करूँगी, क्योंकि आपने देखा इस वीडियो में कि MCQ भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है फॉर द स्टूडेंट्स, कि आपको अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो आपको फिर से बुक पलट के नहीं देखना पड़ेगा कि ये आंसर A नहीं होके C क्यों है, राइट? एंड फॉर क्वेश्चन बैंक ऑल्सो सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है. आपका स्कैनर भी है उधर, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी है, ICMAI के क्वेश्चंस भी हैं, because it is a CMA exclusive study material, right? So yeah, that was it for today's video. And if you find this video a helpful one, then don't forget to share this video with all your CMA final friends, and do let them know about my channel. And also, as I already told you in the last video, इस बार मैं सब्सक्राइब नहीं करने बोलूँगी. I would rather say please pray करो कि मेरा इस बार group 4 clear हो जाए, because this time I have worked really hard, and yeah, please pray करो.